have some breaking inputs coming in at the center of Kolkata Airport. Namaz Rao, Jamiat Chief Siddiqullah Chaudhary speaks exclusively to Times Now on the controversy. In fact, the mosque at the center of this controversy sits close to Kolkata Airport's second runway, which means it is the backup that becomes critical if the main runway ever needs to shut down for maintenance. As per authorities, the mosque's location has stalled that runway's expansion for years and has, in fact, led to delays in upgrades to airports' landing systems. Add to that a security gap flagged by BJP leaders in West Bengal. They highlight that visitors to the mosque that is sitting in one of the airport's most sensitive zones need nothing but an Aadhaar card to walk in. Now, as per BJP leaders, these people need no background checks, no verification. It is also important to note, viewers, that talks about relocating the mosque go back decades, but it is only under Chief Minister Shuvendu Adhikari's government that the process, in fact, has now started, and this is now becoming a big political story as well. And what we are going to be getting for you right now is, in fact, the man, who called for these protests himself, Siddiqullah Chaudhary. He's going to be joining us in just a bit from now. And we will be asking him questions on what really the plan was, because there was heavy police deployment that was there. In fact, what we saw, in fact, people coming out with black bands around their arms. So this is the latest update that we are getting for you to ensure that situation does not go out of control. We, in fact, had got you visuals as well. Listen in to this conversation that we earlier had with Siddiqullah Chaudhary. जी, आप ये जो आज ब्लैक बैंड पहन के आप लोग आज गए हो, यही क्या आप लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट का नमूना था? और क्या करे, सड़क पर डंडा चला है, पत्थर मारे। पर आपने बोला था 1 करोड़ लोग आएंगे। कहाँ? ये झूठ है, ये मीडिया का झूठ। हम पर क्यों कहती हो? मुझको प्रमाण दिखाओ, एविडेंस। ये मीडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊंचा किया। शुभेंदु अधिकारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कान में झूठी बात पहुंचाई। आज कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, 1000 पुलिस भेजा और पुलिस अंधे। हमने उनसे कहा वो मस्जिद 136 साल का, अब टेबल में बात कीजिए, रिलीजियस मैटर, रिलीजियस सॉल्यूशन हो, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। डंडा क्यों चलाते हैं आप? पहले हो एमपी हो मिनिस्टर, झूठा है। And Siddiqullah Chaudhary, in fact, is going to be joining us again in just a bit, because several questions, viewers, today are being asked, and politically also it has become a big story. Listen in to these reactions from BJP. कलकत्ता एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड नहीं कर सकते। ब्रिटिश एयरवेज लिखित रूप में दे दिया, ये उसका मौजूदगी, उसका सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया, इसलिए ब्रिटिश एयरवेज नहीं आ रहा है। तो एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट लाने के लिए और सबसे बड़ा यात्री सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई सरकार नहीं है जिस सरकार जो खड़ा होकर कोई बोल दे कि हम लोग 70% है और हिंदू 30% है, काट कर हम लोग गंगा या भागीरथी में बहा देंगे। वो अभी नहीं चलेगा, वो दिन समाप्त है। अरे जिसके साथ 10 लोग नहीं है वो 1 करोड़ का बात कैसे कर सकता है? देखिए, यही सिद्दीकुल्ला चौधरी है जिसने जब वाकफ के कानून आया था तो तब ऐसे भड़काऊ भाषण दिया था कि हमको 2 जाने गंवाना पड़े। उसने बता दिया था कि हम अभी ट्रेलर दिखा रहा है, इसके बाद कलकत्ता बंद कर दे, और मुर्शिदाबाद में दोनों जाने चला गया। वही कोशिश वो दोबारा दोहराने का, वही कोशिश कर रहा है उसको दोहराने का।
Viewers, let's also tell you a little bit about the history of this particular mosque. 1890s, this Bakra Mosque was established. 1924, British era aerodome was built. 1950s and 60s, that was the time when we saw second runway being added to this particular airport. Then in 1950s and 60s, between that time, nearby villages were cleared. 1962, state government transferred land to Airport Authority of India. In 2003, there were attempts to move the mosque, but those attempts were stopped later. Then in 2019, AAI proposed tunnelway to Masjid. In 2023, bus service for Muslim devotees was introduced as well. Now, viewers, this controversy escalated last week after namaz was suspended at the mosque. The suspension decision came after airport authorities restricted access while citing repair work on the approach road leading to the mosque. BJP government in West Bengal maintains that the mosque is proposed to be relocated because it is part of the airport's expansion plans. Security requirements too have been cited repeatedly by Shubhendu Sarkar. However, Jamiat members allege that worshippers have been denied access without prior notice or consultation. आप लोग क्या एयरपोर्ट मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते जाते थे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। इतना दिन से तो हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये तो आज का मस्जिद नहीं है, जो एक दिन 2-4 दिन 5 दिन की मस्जिद तो नहीं है। 136 साल का मस्जिद है ये। पर अभी सरकार बोल रही है कि नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के नाते उधर से रिलोकेट करना है वो मस्जिद को। कैसे सोच रखे हो इसको? देखिए, जो भी सरकार आता है, सब सरकार का काम है उन्नयन देखना। खाली मस्जिद और मंदिर को लेके अगर सरकार चलेंगे, ऐसे करने लगेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हम लोग का मन का एक दुख है। हम लोग नेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बात आता है क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर है ये। हाँ, ठीक है, ये सेफ्टी तो सब सरकार देख रहा है। कौन सा अनसेफ्टी की तरह हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, आधार कार्ड चेक होता है। आधार कार्ड में मेरा जो एड्रेस है, बांकड़ा का एड्रेस है, उसी एड्रेस देख के बांकड़ा का ही आदमी खाली जा सकता है, उसके सिवा और कोई आदमी नहीं जा सकता है। मिलिट्री हम लोग को पास में लेके मस्जिद के अंदर तक छोड़ता है। वहाँ पे जब हम लोग घुसते हैं तो ताला लगा देता है, फिर नमाज होता है, फिर मिलिट्री के साथ हम लोग को लेके छोड़ के जाता है। तो और क्या सेफ्टी चाहिए। And joining us on the broadcast right now is Siddiqullah Chaudhary. Mr. Chaudhary, thank you for speaking with us here on Times Now. You had given a call for protest yesterday. There was heavy police bandobast as well that we saw around the airport premises. And then we also saw a lot of people coming out with black bands around the arm, but I can see one around your arm as well. Can you explain to us what was the plan and what's really going to happen? देखिए, आप लोगों को गलत और झूठ मैसेज पहुंचा है, ये पहली बात। कल प्रेस क्लब में हमने कहा था बंगाल के 1 करोड़ लोग अपनी अपनी मस्जिद में दुआ करेंगे और ये जो काली पट्टी है इसको हम दुखी हैं लोगों को बताएंगे। हमने कहीं नहीं कहा था कि एयरपोर्ट 7 नंबर गेट बांकड़ा में एजिटेशन होगा। ये 100% झूठ है। मीडिया ने इसको गलत सलत रूप दिया है। हम दुखी हैं, हमने तो किया नहीं। आज यहाँ बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट में आज का डे मनाया। 1 करोड़ हो ज्यादा हो हम शाम को बता पाएंगे। लोगों ने दुआ की, अल्लाह का घर है, जबरदस्ती छीन लिया है और ये काली पट्टी पहनकर दुख को जताया गया डेमोक्रेटिक वे में। अब हमारा जो फ्यूचर आज का जो कहानी है, कमोबेश 500 पुलिस आर्म नॉन आर्म जॉइंट सीपी न जाना कितने लोग वो हमारे सामने आए नहीं। पूरे इलाका को मालूम होता है कोई युद्ध चल रहा है, वार। ये झूठ है। इस झूठ की सजा होनी चाहिए जो लोगों ने गलत कहा है। इसमें पुलिस का भी जो इमेज है वो खराब हुआ। हमारा मोहल्ला बहुत शांत है, अभी भी शांत है। हमारा डिमांड है
और हमने कल रात को एक चिट्ठी लिखी थी सीएम के पास कि आप मस्जिद बंद कर दिया तो नमाज पढ़ने की जगह तो हमें दे दो। सर्विस वाला रास्ता है, गाड़ी रुकती है, हम वहां नमाज पढ़ लेंगे। तो नमाज पढ़ने के बजाय 1000 फोर्स भेज दिया। ये हमें तोहफा दिया है। हम लोग 100 में 100 नंबर हमें मिला है। तो प्रोपोगंडा जिन्होंने किया, फड़काया, 0 बटा उनको 0 मिला। जो अच्छे चैनल है हम स्वीकार करते हैं। ये मस्जिद 136 साल पुरानी है। कोरोना के पीरियड में ये मस्जिद बंद थी, एयरपोर्ट बंद था। उसके बाद कभी नमाज बंद नहीं हुई। सैटरडे से यानी 11 तारीख से आज 17 यानी 17 जुलाई, एक हफ्ता बंद। कोई कानून, ये निराज है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से 20 पेज का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ओके। वॉलंटियर का डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, रिपेयर का डॉक्यूमेंट्स, इफ्तार का डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स है। उनको इतना डर क्यों है? एक चिट्ठी लिख देते, नोटिस टंगा देते, भाई मस्जिद ये क्यों छुप के भाग रहे हैं? उनको भी खत दिया। कल रात को किसी के जरिए से सीएम के कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कांटेक्ट किया। ओके। हमने बताया हम लोग बहुत शांत वाले आदमी हैं, कुछ नहीं हुआ। हमने मीटिंग नहीं बुलाया, नमाज बुलाया। आज ओके। आप कह रहे हैं कि लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का कॉल तो आपने कल ही दिया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है, लेकिन आपने ये भी बोला कि आपकी उम्मीद थी कि सब लोग दुआ करेंगे। क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले में? हमारी दुआ है, मस्जिद अल्लाह का घर है इबादत के लिए। हमारी ताकत कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद को इलीगल तरीके पर समझौता के रास्ता छोड़कर हथौड़ा मारकर हमसे रोका गया। ऊपर से दुआ करते हैं कोई रास्ता खुल जाए, मस्जिद मिल जाए। दूसरी दुआ करते हैं। पर सिद्दीकुल्ला चौधरी जी, कौन से इलीगल रास्तों की आप बात कर रहे हैं? क्या रीडेवलपमेंट से आपको प्रॉब्लम है? देखिए आप हमें समझाइए। 62 में एक्वायर हुआ मस्जिद में RS, CS, LR टोटल रिकॉर्ड मस्जिद के नाम से है। आपको 50 साल पहले आपने भूल किया, हम खमियाजा भुगते हैं। आप टेबल पर बात कीजिए, रास्ता खुले। हमने उनको बताया था दारुल देवबंद ऑल ओवर वर्ल्ड मानी हुई इंस्टीट्यूट तालीमी इदारा है, जमीयत उलमा हिंद है। आप खत लिखकर बात कीजिए, टेबल में टॉक हो, रास्ता खुले। लेकिन आप हथौड़ा मारकर जो चाहेंगे करेंगे, ये हम नहीं चाहते। ये दुआ अल्लाह से की। एक दुआ और की कि मुसलमान आप शांत रहे। नहीं, लेकिन आप कौन से फोर्स के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं? आज अगर पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी उस एरिया पे, सिर्फ इसलिए थी ताकि कुछ गलत ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने। ये तो हुआ है, नोटिस नहीं दिया। आज 1000 पुलिस भेज दिया, किसके लिए? क्यों? कौन जिम्मेदार है? हमको क्यों बदनाम किया गया मीडिया में? कौन लोग है? कौन मीडिया है? कौन पुलिस है? क्यों आई यहाँ? हमने कोई ब्रेक नहीं किया। तो अब आपका आगे का प्लान क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हमने नहीं गलत। एक मिनट आप देखिए, कल थे, पूरा वीडियो चेक कीजिए। हमने बोला 1 करोड़ लोग दुआ करेंगे, काली पट्टी में अपना दर्द बताएंगे। हमने किसी से नहीं कहा प्रोटेस्ट होगा।
हमने कहा मिचिल नहीं होगी, माइकिंग नहीं होगी, सड़क पर नहीं उतरेगा। ये झूठ मूठ हम पर क्यों इल्जाम देते हैं? ये मीडिया वालों ने इसको भड़काया, हमने भड़काया। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी क्या इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ टीएमसी, ऑनरेबल पर्सन, हमने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। प्योर रिलीजियस है, रिलीजियस तरीके पर हल करेंगे, कानून से हल करेंगे, पुरअमन तरीके पर जो होगा करेंगे। आपने एक चीज बताई कि आप बातचीत करने के लिए इस मामले पर तैयार हैं। अगर डेवलपमेंट की बात आती है एयरपोर्ट के लिए, तो क्या आप रिलोकेशन को अग्री करेंगे? एक बात सुन लीजिए, जो बात समझौता पर होती है, बाबरी मस्जिद 50 साल लगा अदालत में, क्यों लगा है बताइए? एक दिन में तो मंदिर बन सकती थी। और जो चीफ जस्टिस साहब ने 1000 मर्तबा बाबरी मस्जिद लिखा है, कहा है, आखिर में कहा आस्था है, लेट गए। ये हमारी डॉक्यूमेंट्री मस्जिद है 136 साल वाली। आप बातचीत क्यों नहीं करते? शर्म लगती है आपको? बातचीत करने में तकलीफ होती है। आप तोड़ना तो तोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। हम दुआ ही करेंगे। 4 करोड़ मुसलमान 1 करोड़ किया, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 55,000 मस्जिद है। हिंदू भाई ने टेलीफोन किया, मैसेज भेजा, आप बिल्कुल सही है, आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बंगाल का सिचुएशन में नहीं है, ये आपसे हम कह रहे हैं। All right, Siddiqullah Chaudhary ji, thank you very much for speaking with us here.